Welcome back to yet another super interesting biology live session on the topic evolution, right? Yes, on the screen. Lecture number 2 on the topic evolution. So we are going to learn about evolution. Yes. Good afternoon, Shrutika. Yes. So up to now we were learning what exactly evolution is. Right? What is it? How Earth originated, how life originated, all these things we discuss in it. Yes, origin of life, origin of Earth. How actually we divided this evolution into 3 parts. First was to discuss the origin of Earth. Once that is done, we started to discuss about chemical evolution of life. Chemical evolution of life. And after that, biological evolution of life. And finally, organic evolution of life. Chemical matlab we will see which all chemicals first got formed. From those chemicals, what was the first biological cell which got formed? Now from that biological cell, how we got developed? That is organic evolution. Okay. So origin of Earth. Then you have classification of evolution into 3 categories: chemical, biological, and organic. Yes. So this is what we had learned. We are living on the earth crust. Right? How universe got formed, how earth got formed. Big Bang theory, remember? Thermonuclear expansion took place and temperature was so high. Temperature started to come down and galaxies got formed. And in that, there is one Milky Way galaxy where we all are living on Earth. Yeah. Then temperature was coming down. Water vapor came on Earth in the form of water and ocean formation took place. Yes, Manjari, huge titanic explosions. Yeah. So all these we had learned. Right? Then some theory. Right? There were some theories. What they explain that how origin of life took place on Earth. So we had learned theory of special creation. God has created. Theory of spontaneous generation. Matlab, all of a sudden, from non-living organism, the life originated. Right? So who was the greatest supporter? Van Helmont. And who was going to disapprove? Who disapproved it? Theory of biogenesis. Given by whom? Reddy, Splanzani, Louis Pasteur. They proved that life is not originating from non-living things. Life is originating from what, Vanashri? Acha. Yes, I know. Okay. Yeah, so I was talking about this. Reddy, Splanzani and Louis Pasteur. So what they did, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेवलप नहीं करेगी. ये कहां से डेवलप होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. बायोजेनेसिस. ये काफी नहीं है. एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला थियरी था जो हमें लगता है कि वो करेक्ट होगा, है ना? मॉडर्न थियरी या केमिकल थियरी या ओपेरेन हैल्डेन थियरी. समझ में आ रहा है कुछ? ओशियन पहले बना, केमिकल्स थे ना, वो केमिकल्स कंबाइन हुए और उससे बायोलॉजिकल लाइफ का फॉर्मेशन हुआ. तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ,
कुछ कुछ सेल्स बने, बायोलॉजिकल सेल्स, और उससे पूरा ह्यूमन बीइंग, दूसरे दूसरे एनिमल का इवोल्यूशन हुआ। क्या बोलोगे उसको? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब ऑर्गेनिज्म में चेंजेस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियोरी कौन? मॉडर्न। क्या बोलता है ये कि केमिकल्स जो थे ना ओशियन में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने, आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीजों से लाइफ ओरिजिनेट हुआ। दैट इज वाई हमारे बॉडी में आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हमारी बॉडी में Na पाया जाता है, Cl पाया जाता है, NaCl ओशन से ऑब्टेन करते हो ना। तो ये बताता है कि हमारा कहीं ना कहीं ओरिजिन कहां से हुआ है? कहीं ना कहीं ओरिजिन हमारा ओशियन से हुआ है। दिमाग में बात जा रही है? यस और नो? ध्यान से सुनो मेरी बातों को, कुछ भी नया नहीं पढ़ाई हूं अभी तक, सब कुछ पढ़ा चुकी थी पहले, राइट? अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को हमने 3 चीजों में डिवाइड किया। देखो, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन मतलब केमिकल मॉडिफाई हुए, केमिकल मॉडिफाई होके क्या बनाए? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, यही सब हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी में यही सब है। तो सबसे पहले केमिकल का इवोल्यूशन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल से थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो बने, इसको बोलेंगे केमिकल इवोल्यूशन। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, कौन बताएगा मुझे? क्या था? बोलो बोलो। रिड्यूसिंग था या ऑक्सीडाइजिंग था? जल्दी बताओ। ऑसम मनश्री, वंडरफुल समीक्षा, इट वाज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, है ना? बिल्कुल श्रुतिका, यस दीक्षा, यस साम्या, यस मंजरी, यस वनश्री, एकदम बढ़िया। इट मीन्स कि जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझ गया मुझे। तो ये हो गया केमिकल इवोल्यूशन। अब उन केमिकल से पहला लाइफ बना, मतलब पहला लिविंग सेल बना। क्या बना? क्या बना? प्रोकैरियोट, या बोल सकते हो ये वाला सेल बना। कहां गया वो सेल? माइक्रोस्फीयर, रिमेंबर माइक्रोस्फीयर, कोएसरवेट, कोएसरवेट या माइक्रोस्फीयर। जब ये सारी चीजें बन रही थी ना, प्रोकैरियोट तक मान सकते हो, मतलब प्रोकैरियोट को हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना है। प्रोकैरियोट को हम लिविंग बोलते हैं, राइट? उनको डेड नहीं बोलते। उनके पास न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनके पास सारे सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बट स्टिल दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बट हम उसको फिर भी लिविंग मानते हैं। हम उसको कभी नहीं बोलते कि वो नॉन लिविंग है। तो प्रोकैरियोट क्या है? लिविंग है। प्रोकैरियोट क्या है? लिविंग है, राइट? लिविंग है। तो प्रोकैरियोट तक कैसा इवोल्यूशन हुआ? बायोलॉजिकल। बहुत मेहनत करनी पड़ी तब जाके एक लिविंग प्रोकैरियोट बन पाया। तो बताओ, जो पहला बैक्टीरिया बना, यस और नो पे बताना, जो पहला बैक्टीरिया बना वो हेटेरोट्रॉफिक था या नहीं? यस और नो? बेचारे को क्या ही पता था कि खाना कैसे बनाना है खुद से? यस और नो? पहला जो था वो हेटेरोट्रॉफिक था या नहीं? बिल्कुल सही था, हेटेरोट्रॉफिक। अब बताओ, हेटेरोट्रॉफिक तो था भाई, खाना वो लेता किससे था? किस पे डिपेंडेंट था? केमिकल्स पे था? यस और नो? क्या वो कीमो हेटेरोट्रॉफ थे? यस और नो? थे ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही। सबसे पहले कैसे प्रोकैरियोट का डेवलप हुआ माय डियर चिल्ड्रन? कीमो हेटेरोट्रॉफ। धीरे धीरे
उनको समझ आया मैं दूसरों पर डिपेंड होगा ही नहीं, मुझे खुद पे डिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो वो ऑटोट्रॉफ बन गए। लेकिन अभी भी खाना वो कैसे बना रहे थे? केमिकल से। तो कीमो ऑटोट्रॉफ, समझ आ रहा है पूरा प्रोसेस? कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब फिर सनलाइट को यूज करके खाना बनाने लगे, सनलाइट को यूज करके खाना बनाने लगे। समझ आया? ऊपर से नहीं जा रहा ना, इवोल्यूशन एक कहानी है, समझो इसको ध्यान से। ओके, तो कीमो हेट्रोट्रॉफिक, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक। पहला कीमो हेट्रोट्रॉफिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक और तीसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो प्रोकैरियोट तक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। उसके बाद यूकैरियोट आएगा, है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट आया, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए और हम जैसे लोग भी आए। तो इसको यूकैरियोट से लेके हमारी बॉडी तक का डेवलपमेंट होना क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। किसी को कोई डाउट है? हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी है, बिग बैंग थियरी से लेके ओशियन का फॉर्मेशन से लेके केमिकल इवोल्यूशन से लेके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तक, एनीवन हैज एनी डाउट? डाउट नहीं है तो नो पे क्लिक करो, है तो यस पे क्लिक करो और डाउट पूछ लो। नो नीड टू गेट हेजिटेटेड। गुंजन को नहीं है, एक बार में बता दिया। फरदीन बताओ आप, देवा, शुभम, किसी को भी कोई डाउट है? दीक्षा, दीक्षा ने भी बता दिया है। तांजिला, वनश्री, संकेत, साम्या, क्या रिपीट करूं? साक्षी, क्या रिपीट करूं? आप लेट ज्वाइन किए हो ना? आप लेट ज्वाइन किए हो, सच बताना। हाँ, तो लेट क्यों ज्वाइन किए हो? हमने बस रिवीजन किया है। अच्छा, स्कूल चल रहा है क्या आप लोगों का? स्कूल इज ऑल्सो रनिंग साइमल्टेनियसली? अरे ठीक है, हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने बस ये बताया। आपको याद होगा अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड किया था कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। मैंने बस ये बताया इवोल्यूशन को हम 3 चीजों में डिवाइड कर देते हैं: केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल में हम केमिकल से रिलेटेड इवोल्यूशन को देखते हैं। उस केमिकल से पहला लाइफ कैसे बना, वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। पहला लाइफ प्रोकैरियोट था, उस प्रोकैरियोट से हम कैसे बन गए, वो आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। हाँ वनश्री, आपका ये जो कोएसरवेट है ना, माइक्रोस्फीयर, कोएसरवेट, देख रहे हो क्या है? प्रोटोबायंट, सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है वनश्री? प्रोटोबायंट, कोएसरवेट, माइक्रोस्फीयर, ओके, सब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है सब में, मोर और लेस सेम। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर ये हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था यूरे एंड मिलर का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि ये बात सच है कि केमिकल से ही क्या बना, कॉम्प्लेक्स केमिकल बना, जैसे कि अमाइनो एसिड वगैरह बना, और उसी से भी कीमो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बने। उसका नेचर क्या था? एनएरोबिक, क्योंकि एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं था,
तो वो कैसे इवॉल्व थे? बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते थे, तो उनका नेचर एनएरोबिक था। अब ये मत बोलना कि मैम समझ नहीं आ रहा, समझ आया ना? कल कल नहीं, मतलब लास्ट वीक भी मैंने ये पूरा पढ़ाया है, राइट? मैं इसलिए फिर से इसको बता रही हूँ ताकि आप भूलो मत कहानी को। इट इज अ स्टोरी। जब तक पूरा कनेक्ट नहीं करोगे अच्छे से समझ नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगी चीजें। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, अब हम नया क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसके पहले आपका संडे को कोई टेस्ट था ना? यू हैड अ टेस्ट ऑन संडे, राइट? ये लास्ट संडे को कोई टेस्ट था मॉलिक्यूलर बायो का? नहीं था क्या? अच्छा, तो इस संडे है क्या मॉलिक्यूलर बायो का टेस्ट? इस संडे है क्या? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायो का टेस्ट अच्छे से दो। उसके बाद मेरे को बताना क्या डाउट्स हुए हैं। हम पेपर डिस्कस करेंगे टेस्ट के बाद नेक्स्ट वाले वीक में, ठीक है? मेरे को लगा टेस्ट हो चुका है। अरे 3 चैप्टर कंबाइन है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन अभी पढ़ा हमने, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 3 इवोल्यूशन। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। इसमें देखो, कोएसरवेट से प्रोकैरियोटिक सेल बनेगा। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रोकैरियोटिक से अभी तक जो भी चीजें बनी हैं सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में है। कोई शक, कोई डाउट है किसी को? ये देखो कुछ इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? वाटर और अमोनिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था इस पृथ्वी पे? मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन, है ना? क्या हुआ साक्षी, आपने हाथ रेज किया है? अनम्यूट करूं क्या आपको? भाई मिस्टेक क्या? पहला लिविंग मॉलिक्यूल कौन है? कोएसरवेट। आप यहाँ पे प्रोटोबायंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोएसरवेट फर्स्ट साइन ऑफ लिविंग। कैसे पता चला कि कोई चीज लिविंग है? जब न्यूक्लियोप्रोटीन बना। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब आरएनए, डीएनए। हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए है ना, तो वो डीएनए क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है? फर्स्ट लिविंग फॉर्म, पहला लिविंग फॉर्म क्या बना? प्रोटोसेल या फिर प्रोटोबायंट बोल सकते हो, है ना? पहले आपका कोएसरवेट, प्रोटोबायंट। पहला सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला लिविंग बीइंग, पहला लिविंग बीइंग क्या था? प्रोकैरियोट था। पहला लिविंग बीइंग क्या था? प्रोकैरियोट था। यहां से अभी तक का जो सफर है वो क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। समझ रहे हो कुछ समझ आ रहा है ना? चैप्टर को समझना है, भूल जाओ एग्जाम में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, ठीक है? पता नहीं क्या होने वाला है दुनिया में, राइट? नो वन नोज। जितना सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे, है ना? जी लगा के सीखेंगे, राइट? तो चलो अब हम सीखेंगे एविडेंसेस। हमारे पास थियोरी तो बहुत सारे हैं, दुनिया थियोरी पे नहीं चलती है बॉस। क्या चाहिए उनको? सबूत मांगता। क्या मांगता? सबूत, एविडेंसेस, प्रूफ। तो बहुत साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया, है ना? मान लो मैंने जमीन की खुदाई की। आई डिग्ड आउट द सॉइल। व्हाट आई फाउंड? आई फाउंड आउट कुछ ऐसी चीजें मिली जो मैं फॉसिल्स बोलूंगी उसको, बहुत पुराने साल पहले का कुछ मैंने ऑब्टेन किया। व्हेन आई वाज डिगिंग
मेरे को बहुत पुराने साल पहले का कुछ कुछ मिला, जमीन के अंदर दबे हुए, एकदम दबे हुए अंदर, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। बिल्कुल सही, बहुत लोगों को पता है ना। फॉसिल्स पता है, उसकी एज निकाली जा सकती है। मतलब वो मर गए, मरने के बाद जमीन के इतने अंदर जा चुके हैं, फिर भी उसको बाहर लाके उससे पूछोगे तो नहीं ना भाई कितने साल के हो, बताएगा क्या वो? नहीं, नहीं बताएगा ना, कॉमन सेंस से मर गया भाई। तो क्या करोगे? कार्बन डेटिंग करोगे, बिल्कुल सही, एकदम सही, हाँ, कार्बन डेटिंग। भाई ये बताओ, कौन मुझे ये बता देगा कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, नाइट्रोजन डेटिंग क्यों नहीं करते? नाइट्रोजन भी तो है हमारे बॉडी में। सल्फर डेटिंग क्यों नहीं करते, वो भी तो है हमारे बॉडी में। वाटर डेटिंग क्यों नहीं करते, हाइड्रोजन डेटिंग क्यों नहीं करते, वो भी तो था हमारे बॉडी में। क्यों करते हैं कार्बन डेटिंग, कोई बता सकता है मुझे? कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए साक्षी, ठीक है, कुछ आपने एटलीस्ट ट्राई किया है, फाउंड इन सॉइल वनश्री। अरे भाई हमने बोला, मैंने बोला बॉडी में सब कुछ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इतना कुछ होने के बाद आप कार्बन ही क्यों यूज करते हो मेरे बच्चों? श्रुतिका ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वंडरफुल श्रुतिका। साक्षी का भी थोड़ा क्लोज आंसर सही है, अबंडेंट होते हैं। चलो, बहुत लोगों ने कुछ कुछ करेक्ट आंसर दिया है, श्रुतिका का बहुत आंसर करेक्ट है, पूरा आंसर करेक्ट है। देखो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको, हाफ लाइफ कार्बन का होता है 5600 ईयर्स। अब बोलोगे हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? मान लो मेरी बॉडी है ना, मैं फॉसिल बन गई, ठीक है, मैं, हाँ, कार्बन इट इज रेडियो एक्टिव, ओके ओके, वी विल कम टू दैट। मान लो कार्बन मेरी बॉडी में, इसको समझाने के लिए बस समझा रही हूं, मेरी बॉडी में मान लो कितने कार्बन है? 20 कार्बन। मेरी बॉडी में कितने कार्बन? 20 कार्बन। आपको पता है इसकी एक्टिविटी आधी कब हो जाएगी? इस कार्बन की एक्टिविटी आधी कब हो जाएगी, मतलब 20 कार्बन 10 कार्बन के इक्वल कब हो जाएगा? इसकी एक्टिविटी आधी कब हो जाएगी? कितने सालों बाद? 5600 ईयर्स। समझ रहे हो कुछ? मतलब कार्बन की एक्टिविटी आधी कब होगी? 5600 साल के बाद, 5600 ईयर्स के बाद। तो समझो, जिसकी एक्टिविटी आधी इतने साल में होती है, इतने सारे हजार साल में, तो हम क्यों नहीं चूज करेंगे कार्बन को? मान लो कोई फॉसिल मिला, अगर कोई फॉसिल मान लो 5600 साल पुराना है, कैसे पता चलेगा? उसकी कार्बन की एक्टिविटी क्या हो गई होगी? हाफ। उसकी कार्बन की एक्टिविटी आधी हो गई होगी। अगर उसकी कार्बन की एक्टिविटी आधी हो गई, मतलब वो कितना पुराना है? 5600 ईयर्स। समझ रहे हो? मान लो उसकी कार्बन की एक्टिविटी 1/4 हो गई, 1/4 हो गई, तो ये तो आधा का भी आधा है ना, आधा का भी आधा है। 1/4 का मतलब क्या? आप एक रोटी ले लो, चपाती, उसको हाफ करो, तो 1/2 हो गया वो, उसको एक बार और टुकड़ा करो, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना। तो जब आधा था एक्टिविटी, तो 5600 ईयर्स। मैं अगर बोलूं कि उसकी एक्टिविटी 1/4 हो गई है, मैंने, आप एक रोटी को 4 टुकड़ों में बांट चुके हो, उसकी एक्टिविटी बस इतनी बची है, आधा का भी आधा, तो बताओ कितने साल का है वो? जल्दी से कैलकुलेट करो तो। जब आधा है
तो 5600 ईयर्स है वो फॉसिल का एज। जल्दी बताओ सामने, एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो। मंजरी का आंसर शायद करेक्ट है। भाई देखो 5600 ईयर्स जब आधी एक्टिविटी हो गई, अगर मैं बोलूं कि उसकी एक्टिविटी 1/4 हो गई, मतलब आधी से भी आधी हो गई ना, तो आधी में होने के लिए इतना लगा, उससे भी आधी होने में क्या लगेगा, उसका डबल टाइम लगेगा ना, डबल लगेगा कि नहीं? क्या क्या लिख रहे हो सब? मैं गलत लिख रही हूँ क्या कुछ? 0 0 2 6 12 2 1 2 5 10 11। किसी का आंसर ये आ रहा है 11,200? सोच के बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ये सोचो पहले। बॉयज बॉयज यू आर गुड इन मैथमेटिक्स ना? मतलब आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग गर्ल्स, बट जनरली लड़के बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, उनको रटना पसंद नहीं होता लड़कों को। तो मुझे ये बताओ, जब उसकी आधी एक्टिविटी 5600 ईयर्स लगाती है, तो अगर अगर उसकी एक्टिविटी 1/4 हो जाए, कैसे समझ नहीं आ रहा यार? देखो मैं समझा के ही रहूंगी इसको। हाफ एक्टिविटी कितने साल में? 5600 ईयर्स में। 5600 ईयर्स में मैं बोल रही हूँ उसकी एक्टिविटी कितनी हो गई, मान लो 20 से 10, 20 से 10 होने में 5600 ईयर्स लगे ना। 10 से 5 होने में, 10 से 5 होने में बताओ कितना लगेगा, कितना लगेगा? 5600 और लगेंगे ना, 5600 ईयर्स। देखो क्या होगा आंसर, 0 0 ऐड कर दो, 6 6 12 1 11,200 ईयर्स। समझ आ रहा है कुछ? वनश्री समझा? श्रुतिका सामिया को समझ आ गया? किसको किसको समझ आया ये क्वेश्चन? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो। मैंने बोला कि आधी एक्टिविटी लगने में भाई 5600 ईयर्स लगते हैं। मुझे उसकी एक्टिविटी आधी से भी आधी हो गई, तो एक आधे में 5600, दूसरे आधे में एक और 5600, राइट? मैं बोलूं उससे भी आधी हो गई, तो एक और 5600 ऐड कर दोगे। क्या सबको समझ आया? यस नो? समझ आया तो यस पे क्लिक करो। क्लियर है ना मिस? चलिए मिस, बहुत अच्छी बात है मिस। क्या शुभम, वो तो उसका फुल लाइफ हो गया, मतलब? शुभम समझ नहीं आया क्या आपको? अगर कोई फॉसिल मिला है उसका एज निकालना है आपको, कि कितने साल पुराना है वो, कितने साल पुराना है वो, है ना? तो कार्बन कितना एक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल फाइंड आउट द एज। उसकी एक्टिविटी आधी मतलब 5600 ईयर्स पुराना है, आधी से आधी मतलब 5600 प्लस 5600, उससे भी आधी एक और 5600 ऐड करो, तो वैसे हम इजीली कर क्या सकते हैं, एज फाइंड आउट कर सकते हैं। शुभम आई विल अनम्यूट यू, अगर आपका डाउट है अभी भी आप मुझसे क्लियरली पूछ लो। इज इट क्लियर शुभम? या ओके, चलो। तो वो हो गया आपका कार्बन डेटिंग, है ना? अब देखो हमने कार्बन डेटिंग कर करके, जब कार्बन डेटिंग से करते हैं ना, जब कार्बन डेटिंग से करते हैं हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, उससे सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल
एविडेंसेस, समझे ना? कोई डाउट है तो पूछ लेना। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। समीक्षा इज आस्किंग कि समटाइम्स कार्बन डेटिंग इज नॉट यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली ओल्ड फॉसिल्स। तो आपको आंसर खुद मिल जाना चाहिए। मान लो कार्बन की एक्टिविटी एकदम है ही नहीं कार्बन बॉडी में। कार्बन होना तो चाहिए, तभी तो आप कार्बन डेटिंग करोगे। मान लो उसकी एक्टिविटी 0 हो चुकी है ही नहीं, इतना पुराना है वो, फिर कैसे करोगे कार्बन डेटिंग? है ना समीक्षा? 5600 ईयर्स में हाफ लाइफ उसका खत्म हो जाता है, उससे डबल कर दोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस। तो कार्बन रहना तो चाहिए बताने के लिए। हाँ मंजरी, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल, उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, अब आई थिंक ये भी है आपके बुक में ना, ये वाला बुक में है आपके, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट महाराष्ट्र सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड किया है कि कितने, ध्यान से देखना, इसको घबराना मत देख के, ठीक है? 2 पेज का है ये, 2.5 पेज का, इसको देख के घबराना नहीं है। आई एम हियर, आई विल टेल यू इसको कैसे सीखना है, क्या सीखना है इसमें। सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रही हूं वो सीखना है, ठीक है? देखो, ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, एरा, पीरियड, एपोक, एरा, पीरियड, एपोक। ध्यान से देखो, अभी, अभी, नाउ, राइट नाउ, हम कौन से एरा में रहते हैं? सीनोजोइक एरा। ध्यान से सुनो, एक एक करके सब समझा दूंगी। हम कौन से एरा में रहते हैं? अभी तो कुछ डिफिकल्ट लगा है नहीं ना? यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। कौन से एरा में रहते हैं? सीनोजोइक एरा में, सीनोजोइक एरा में। तो भाई क्यों हम इसको अपना एरा बोल रहे हैं, हमारा एरा, हमारा एरा, क्यों? क्योंकि हम मैमल्स है ना, वी आर मैमल्स, तो एज ऑफ मैमल्स अभी चल रहा है सीनोजोइक एरा, जिसमें मैमल्स रहते हैं, मतलब मैमल्स सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। उसी तरह प्लांट में क्या सीखा है हमने, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? बोलो, ये है कि नहीं? एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड है ना, तो सीनोजोइक एरा किसका एज है? मैमल और एंजियोस्पर्म्स का। ओके, अब हम कौन से पीरियड में हैं? हम क्वार्टरनरी पीरियड में हैं। हम कौन से इपोक में हैं? होलोसिन। कौन से इपोक में है? होलोसिन। और एक और चीज है, हम कौन से इयॉन में हैं? फेनेरोजोइक इयॉन में है, फेनेरोजोइक। रिमेम्बर फेनेरोगैमी, याद है कुछ 11th में पढ़ा था, फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम। फेनेरोगैम का मतलब सीड प्रोड्यूसिंग, है ना? तो हमारा इयॉन जो है वो कौन सा है? फेनेरोजोइक। मतलब यहाँ पे प्लांट जो है सीड प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रेजेंट डे, ये सबको याद होना चाहिए, हम कौन से इयॉन में हैं, हम कौन से एरा में हैं, हम कौन से पीरियड में हैं और कौन से इपोक में हैं। 4 चीजें। कौन सा इयॉन? फेनेरोजोइक। कौन सा एरा? सीनोजोइक एरा। कौन सा पीरियड? क्वार्टरनरी। कौन सा इपोक? होलोसिन। तो क्या आपको इसमें कोई डाउट होगा? प्रेजेंट डे वाले में कोई डाउट होगा कि इसमें इंसान रहते हैं या डायनासोर रहते हैं? कोई डाउट होगा इसमें? अगर मैं बोलूं प्रेजेंट डे है ये, अगर मैं बोलूं सीनोजोइक एक प्रेजेंट एरा है,
अभी हम जब है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा कि डायनासोर रहेगा यहाँ पे कि इंसान रहेगा? विल यू हैव एनी कंफ्यूजन? यस और नो? नहीं ना, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब, क्योंकि आपको पता है आपका बोलबाला है, राइट? इट इज ऑल योर्स। तो आपको पता है कौन कौन सी चीजें यहाँ प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं प्रेजेंट होती हैं। ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट डे मतलब सब समझता है ना? फेनेरोजोइक, सीनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड एंड होलोसिन इपोक। अब इसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वो सारी चीजें थोड़ा सा हमें सीखना है, सब कुछ नहीं। आई विल टेल यू क्या सीखना है। आप जहां जहां देखो रेड कलर है ना, वही सीखना है आपको। जहां रेड कलर नहीं दिख रहा है एकदम आंख बंद कर लेना, आंख को वहां भेजना ही मत। टेक योर आइज बैक फ्रॉम देयर। ओके, यस वी कैन डू ना? बोलो हाँ मैम, एक्सपर्ट है उसमें तो, राइट? चलो अब देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो सबसे पहले दिखाया वो क्या था? प्रेजेंट डे। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूं सबसे पुराना, सबसे ओल्ड, उस समय कौन सा एरा था, पीरियड था, इपोक था। ठीक है? यस? तो चलते हैं यहां, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? आपका एरा है। तो सबसे पहले एरा क्या था? पैलियोजोइक एरा। डोंट वरी, बस एक बार सुनो मुझे, मैं सब याद करा दूंगी, ठीक है? पैलियोजोइक एरा। उसके बाद देखो, एरा के बाद क्या था बेटा? पीरियड था ना? पीरियड के बाद क्या था? इपोक था। ये याद रखो, ये ऑर्डर है, एरा, पीरियड, एपोक। तो ये एरा हो गया पैलियोजोइक। मैं क्या बता रही हूँ? सबसे पुराना, सबसे पुराना। अगर किसी को साइंटिस्ट वगैरह बनना है, यू नो, जिसको ज्योग्राफी पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, जियोलॉजी पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, आप ये सब आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, है ना? तो पैलियोजोइक एरा, उसके अंदर देखो कितने सारे पीरियड है ना? तो सबसे पुराना वाला पीरियड कौन होगा? ये सब होगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। ये सब जैसे जैसे ऊपर जाओगे नया नया आता जाएगा। तो बहुत सारे पीरियड आपको दिख गए। अब इसमें इपोक कुछ दिख रहा है? कुछ इपोक नाम का चीज ही नहीं है, कोई इपोक विपोक कुछ नहीं लिखा है, राइट? अब देखो ऊपर आते हैं। पैलियोजोइक के बाद कौन सा एरा आया था? जहां जहां रेड कलर है ना वही याद रखना है। डेवोनियन में किस चीज का डेवलपमेंट हुआ था? जो रेड कलर है वही देखना है। कार्बोनिफेरस में क्या था? जो रेड कलर है वही देखना है। समझ रहे हो ना? पैलियोजोइक के बाद आ जाओ मीजोजोइक एरा। इस एरा में कितने पीरियड? 3 पीरियड। इस एरा में कितने पीरियड? 3। सबने सुना होगा, ट्राइयाजिक, जुरासिक, क्रिटासियस। ट्राइयाजिक और क्रिटासियस नहीं भी सुन सकते हो, बट जुरासिक आई कैन गारंटी कि सबने सुना होगा। जुरासिक पे कितनी मूवी भी आई है ना, जुरासिक पार्क, राइट? तो इसमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या था, डोमिनेंस ऑफ डायनासोरस। मूवी इसी पे बनी है ना पूरी, यस और नो? यहीं पे हो ना? इतना चीख रही हूं, थोड़ा तो यस पे क्लिक कर दो। हाँ ठीक है, ओके। तो जुरासिक
में डोमिनेंस किसका था? डायनासोरस का था। तो ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटासियस, 3 पीरियड्स थे। अब आ जाओ उससे ज्यादा अच्छा कौन था? सीनोजोइक। सीनोजोइक समझ आ रहा है? तीसरा सीनोजोइक, इसका पीरियड 2 है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। मतलब हम किस एरा में हैं? सीनोजोइक एरा में हैं। इसमें 2 पीरियड थे, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। हम कौन से पीरियड में हैं? जो सबसे नया है। नया कौन है? क्वार्टरनरी। इसमें देखो इपोक बहुत सारे हैं, इपोक। बाकी किसी में इपोक हमने नहीं देखा, बाकी किसी में हमने इपोक नहीं देखा। इसमें देखो इपोक है 1 2 3 4 5 5 6 7। कितने इपोक है? 7 इपोक्स। हम कौन से वाले इपोक में रह रहे हैं? 7th इपोक में रह रहे हैं। 7th इपोक कौन है? होलोसीन। होलोसीन। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? थोड़ा थोड़ा क्वार्टरनरी पीरियड में रह रहे हैं और होलोसिन इपोक में रह रहे हैं। अब फिर से मैं आपको सिखाऊंगी इपोक। कितने इपोक है? अभी बताया कितने इपोक है? 7। कहां से स्टार्ट हो रहा था बेटा मेरे प्यारे बच्चों? कहां से स्टार्ट हुआ ये? पुराना से नया, पैलियोसीन। कहां से स्टार्ट हुआ? पैलियोसीन। तो हम इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम सीनोजोइक एरा में रहते हैं, तो इसके इपोक को कोशिश कर सकते हैं याद रखने के लिए। नहीं, सीबीएसई को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट नीट के लिए जरूरत है। सीबीएसई बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र वाले बुक में मेंशन है, इसलिए मैं समझा दे रही हूं। नीट के लिए जरूरत है ना? तो याद देखो क्या है। अरे बहुत इजी है, मैं इतना समझा रही हूं इसलिए लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा है। एक बार समरी दूंगी ना, सब इजी लगेगा। देखो, पुट एक्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। क्या है ये? पुट एक्स ऑन माई प्लेट। समझ आता है ना? नॉर्मल इंग्लिश। हमारे टेबल पे अंडे रख दो, प्लीज हनी। लाइक विथ लव you can call your loved ones, right? Honey. Put eggs on my plate, please honey. देखो तो, अब देखो तो, put eggs on my plate, please honey. याद रहेगा? Put eggs on my plate, please honey. तो वो हो गया आपका सीनोजोइक एरा के 7 इपोक्स। ओके, अब देखो पीरियड। किसी को कुछ याद रहे नहीं रहे, हमारा प्रेजेंट डे जो है ना वो याद रखना। बाकी अगर आप भूल जाते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि मैं अपने तरफ से आपको सिखाऊं, है ना? बाकी आप भूल जाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट डे याद रखो। ओके, आ जाओ पीरियड में, आ जाओ। क्वार्टरनरी, टर्शियरी सब देखा ना? तो देखो, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली। जो ऊंट होते हैं ज्यादातर केयरफुली बैठते हैं, बट परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। अच्छे से बैठते फिर भी उनके जॉइंट में क्रैक आ जाता है। परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। देखो अब पीरियड में देखो, यहां से पीरियड स्टार्ट हुआ। कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। इतना याद रहेगा। उसके बाद तो टर्शियरी है और क्वार्टरनरी है, टर्शियरी है और क्वार्टरनरी है, वो तो इजी है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई कंपल्सन किसी को नहीं है इसको याद करने के लिए, बस ये याद रख लेना प्रेजेंट डे। एरा कौन कौन से है?
प्लीज पे माई चिल्ड्रन। 4 एरा देखा आपने ना, पैलियोजोइक, प्लीज, 4 ही एरा है ना, इसमें क्या लिखा है मैंने, प्लीज पे माई चिल्ड्रन, राइट। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक, एक और होना चाहिए ना, एरा में हमने 3 ही एरा देखा क्या, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सिनोजोइक। ठीक है, तो 3 एरा में क्या क्या देखा हमने, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। सिनोजोइक हमारा करंट एरा है। क्या कोई पता कर सकता है पैलियोजोइक के पहले वाला एरा कौन सा? हाँ, मिल गया मिल गया, प्रोटेरोजोइक, है ना, यस वनश्री, प्रोटेरोजोइक। तो हमारा 4 एरा है, प्लीज पे माई चिल्ड्रन, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, चिल्ड्रन, सिनोजोइक। हाँ, तो जिसको याद रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने मैंने रेड रेड कलर में डाला है ना, वो सब पढ़ लो। सीबीएसई बोर्ड, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं भी पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये याद रखना प्रेजेंट डे हमारा क्या चल रहा है ना, कौन सा एरा चल रहा है, कौन सा इयॉन चल रहा है, पीरियड, इपोक क्या चल रहा है, भाई जानना चाहिए ना, जिंदा हो हम, जिंदा है हम सब। ठीक है, यहाँ पे मिल गया वनश्री। हाँ श्रुतिका, आई अपलोड इट ना, ऑलवेज, दिस विल ऑल्सो बी अपलोडेड। ओके, तो ये है आपका पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हमने कैसे पूरे टाइम को डिवाइड कर दिया है। ठीक है रोशनी, आर्कियोजोइक अजोइक कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट नीडेड। ओके, ऐसा हम बोलते हैं ना, पहले आर्के बैक्टीरिया डेवलप हुआ था, दैट इज नॉट नीडेड। ओके रोशनी, जितना जरूरत है ना उससे ज्यादा मैंने बताया है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो सबसे बड़ा आपका इयॉन होता है, फिर एरा होता है, फिर पीरियड, फिर इपोक। इपोक सबसे छोटा, तभी तो सबसे ज्यादा है, ज्यादा क्लासिफाई कर दिया हमने, है ना। तो ये सब देखो, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो उसमें दिखाया है ना कि पहले जमाने में, मतलब आपका कौन सा, जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में आपको डायनासोर्स मिलते थे। अब वही डायनासोर क्या हो गया, मॉडिफाई होता गया, कुछ बर्ड्स बन गए और कुछ क्रोकोडाइल्स बन गए, है ना, कुछ बर्ड्स बन गए, कुछ क्रोकोडाइल्स बन गए, लेकिन अब डायनासोर्स नहीं है, डायनासोर्स नहीं है ना। यस, चलो, तो पैलेंटोलॉजिकल हमने सीख लिया अच्छे से। अब है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो आज मैं ये स्टार्ट नहीं करूंगी, ठीक है, आई विल नॉट स्टार्ट दिस। जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, हड़बड़ी नहीं करनी चीजों में, ऐसे पढ़ना है कि हमें ऐसा लगे कि हमने सीख लिया इसको क्लास में, ऐसा नहीं कि भाई एक बार क्लास में पढ़ा और 10 बार घर में पढ़ रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। ओके, क्या है मंजरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ, मॉर्फोलॉजी वाले में बोल रहे हो ना, मॉर्फोलॉजी वाले में बोल रहे हो ना मंजरी, हाँ, हम सीखेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी क्या होता है। मंजरी ने हमें बताया मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है मैम, और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बढ़िया है, यस, 9th में था क्या, अच्छा, कैसे याद रहता है इतना कुछ। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, आपने 9th में क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, आपको याद है,
बट आपने 11th में क्या पढ़ा था आपको याद नहीं है। ऐसा होता है ना, नोटिस किया है? आपको ज्यादा चीजें 9th और 10th की याद होगी, 11th से ज्यादा आपको 9th और 10th की चीजें याद होती है। मुझे भी एक्चुअली अभी भी मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी याद है कि मैंने इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक इस पेज पे ऐसे पढ़ा था, मतलब लेफ्ट साइड पे था, ये कॉर्नर पे था, ऐसे ऐसे इमेज छप जाती है दिमाग में। लेकिन 11th का बहुत मुश्किल है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग ज्यादा डेविएट नहीं होता है 10th तक, है ना। हमें बहुत चीजें नहीं पढ़नी होती है 10th तक, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। लेकिन 11th में बहुत ज्यादा होता है, राइट। 11th में बहुत ही ज्यादा होता है सब कुछ, राइट। दैट इज वाई आप इसको समझो उसको समझो, दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होता, हम रिविजन कम करते हैं, इसलिए हम 11th की चीजें भूलते हैं, है ना। कुछ ज्यादा ही दीक्षा। यस यस। चलो, अब किसी को कुछ बातें करनी है तो वी कैन डू। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, कुछ भी बातें करनी है तो कर लो। आई विल एंड द रिकॉर्डिंग, है ना।